morning students. Now today we will see our lesson number 12, data handling. So very simple lesson it is. So see your page number 147. See on this page number 147 you can see so many different types of flowers are there in the pots and two girls are sitting. So what this first girl is saying, how many flowers of each kind are there in your garden? वो एक ये जो लड़की बैठी है वो अपनी फ्रेंड से पूछ रही है कि तुम्हारे गार्डन में कितने टाइप के फ्लावर्स हैं. तो इसने बोला लेट अस मेक अ लिस्ट ऑफ दीज फ्लावर्स एंड काउंट देम. तो वो लड़की बोलती है चलो हम दोनों मिलकर हम लोग ये फ्लावर्स की लिस्ट बनाते हैं. Now see your exercise 12a. So you can see here different types of flowers are given. So we have to count these flowers in this pot, different pots, and we have to write here numbers. So first flower is rose flower. You can see very clearly how many rose flowers are here. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So you write down here 6 number of flowers. You write down in this empty box. Now second type of flower is how many numbers? See here. Here that flower is 1, 2, 3, 4, 5. How many flowers? 5. You write down here number 5. Now third flower is marigold flower. So how many numbers of that marigold flower? You can count here 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So you write down here number 12. Now this next flower, that may be jasmine flower. So you count here this jasmine flower 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 jasmine flowers are there. So you write down here 8. Now this lotus, that bird of that lotus, how many that you can count here? See 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. In these two pots, same lotus bird is there. So how many birds are there? 11. So you write down here 11. And the last flower is sunflower. So how many sunflowers are there? See, in these two pots, you can see such type of sunflowers. So count it 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So 10 sunflowers are there. So in this way you have to complete this chart. So you complete in your textbook. Now see your page number 147. So pictographs. What is the meaning of pictograph? That information is given here. We can express a given information in a number of ways. Suppose this such type of chart. We can see this how many flowers are there and we can write here number of flowers. So this is the shortcut way to express our numbers. Okay, so we can express it in words, numbers, through pictures, etc. So we express here already by using numbers, how many flowers are there in a big garden. So this is a very simple way. Okay, now see your page number 148. What is given on this page? When we make use of pictures or symbols to represent information, it pictorial representation or pictograph of the given information. So such type of information is called as pictorial representation. We will see so slowly. Okay, information expressed through pictures is usually clear and is easily understandable. So this is a very simple way to count so many big numbers with the help of such type of figures. Okay, in pictographs the same types of pictures are often used to represent a specific number of objects. So in pictograph, such type of pictograph, so many pictures, so
this, for example, here this is one smiley face. So this smiley face is represented by only one toy. Okay, now for example, what is this example? We will see. Mamta, Sonu, Praveen, Rishav and Manohar counted the toys they had. अभी 1 2 3 4 5 ये जो स्टूडेंट्स है इन्होंने क्या किया, एक जन के घर में वो जमा हो गए और उन्होंने ये अपने जो टॉयज है उनको काउंट किया, कितने टॉयज है हर एक के पास। तो इन्होंने बोला कि ममता के पास कितने टॉयज है, टोटल 6 टॉयज है। सोनू के पास कितने टॉयज है, 3 टॉयज है। प्रवीण के पास कितने टॉयज है, 5 टॉयज है। ऋषभ के पास कितने टॉयज है, 4 टॉयज है। मनोहर के पास कितने टॉयज है, 5 टॉयज है। ओके, अभी यहाँ पर देखो, वी कैन रिप्रेजेंट द अबव इंफॉर्मेशन एज अ पिक्टोग्राफ। ये जो इंफॉर्मेशन हमारे पास है उसे हम एक पिक्टोग्राफ के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सो कैसे लिखना है, देखो, ममता के पास कितने टॉयज है, 6। और यहाँ पे स्माइली फेस का एक स्माइली फेस दैट इज रिप्रेजेंट ओनली 1 टॉय। ये स्माइली फेस की वैल्यू कितनी है, ओनली 1। तो ममता के पास कितने टॉयज है, 6। सो 1 2 3 4 5 6, हाउ मेनी टॉयज आर देयर, 6 टॉयज। देन सोनू के पास कितने हैं, 3, 1 2 3 स्माइली फेस। देन प्रवीण के पास कितने हैं, 5, 1 2 3 4 5 स्माइली फेस। देन ऋषभ के पास कितने हैं, 1 2 3 4 स्माइली फेस। देन मनोहर के पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 स्माइली फेस। अभी डिपेंडिंग अपॉन दिस, नाउ यूजिंग द पिक्टोग्राफ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब ये पिक्टोग्राफ देख के जो भी क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे उनके हमको आंसर देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हु हैज द मोस्ट नंबर ऑफ टॉयज? सबसे ज़्यादा टॉयज किसके पास है? क्या आंसर आएगा हमारा, ममता। सो राइट डाउन हियर ममता, आंसर ऑलरेडी गिवन। सेकेंड क्वेश्चन, हु हैज द लीस्ट नंबर ऑफ टॉयज? लीस्ट मीन्स सबसे कम टॉयज किसके पास है, 3, सोनू के पास 3 टॉयज है। तो आंसर क्या आएगा यहाँ पर, सोनू। और थर्ड क्वेश्चन में, विच 2 चिल्ड्रन हैव इक्वल नंबर ऑफ टॉयज? अभी कौन से 2 चिल्ड्रन है जिनके टॉयज का नंबर सेम है? तो यहाँ पे हमको क्लियर दिख रहा है, प्रवीण और मनोहर। सो व्हाट इज आवर आंसर, प्रवीण एंड मनोहर। ओके, नाउ सी योर पेज नंबर 149। अभी हमको और एक टाइप का एग्जाम्पल स्टडी करना है। नाउ स्टडी द फॉलोइंग एग्जाम्पल। द फॉलोइंग पिक्टोग्राफ शोज द नंबर ऑफ जूस बॉटल्स सोल्ड इन अ स्कूल कैंटीन फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। अभी एक स्कूल का कैंटीन है, वहाँ पर ये जूस बॉटल्स एक आदमी ने सोल्ड किए, और कब से लेकर कब तक, मंडे से लेकर फ्राइडे तक। और एक बॉटल जूस की बॉटल रिप्रेजेंट 2 जूस बॉटल। एक बॉटल की प्राइस क्या है, मतलब एक बॉटल कितने जूस बॉटल को रिप्रेजेंट करती है, 2। देखो अभी मंडे को, तो मंडे को कितने बॉटल्स है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 2 जा हाउ मच, 12। ओके, तो मंडे को हो गए 12। देन ट्यूसडे को 1 2 3 4 5 6 7 2 जा 14। देन वेनसडे को 1 2 3 4 2 जा 8, वेनसडे को 8। थर्सडे को 1 2 3 2 जा 6 यहाँ पे हमको आंसर मिलेगा। और फ्राइडे को कितने बॉटल्स है, 1 2 3 4 5 2 जा 10। Okay, now depending upon this, using the above pictograph, we can answer the following question very easily. Very simple questions are there. First question is, on which day were 12 bottles of juice sold? 1 2 3 4 5 6 2 जा 12। तो कौन सा डे है ये, मंडे। तो हमारा आंसर क्या आएगा, मंडे। Now second question, on which day were the least bottles सोल्ड? लीस्ट मतलब सबसे कम कहाँ पर दिख रहा है हमको, थर्सडे को, 1 2 3 2 जा 6। तो हमारा आंसर है थर्सडे। नाउ सी थर्ड क्वेश्चन, ऑन विच डे वेयर द मोस्ट बॉटल्स सोल्ड? सबसे ज़्यादा बॉटल्स किस दिन सोल्ड हुए, 1 2 3 4 5 6 7।
7 2 जा 14। तो सबसे ज़्यादा कब सोल्ड हुए? ट्यूसडे को, तो हमारा आंसर आएगा ट्यूसडे। नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज हाउ मेनी बॉटल्स वेयर सोल्ड ऑन फ्राइडे? 1 2 3 4 5। 5 bottles were sold on Friday. 5 2s are 10. See, आंसर में क्या लिखा है? 2 5s are 10. 10 bottles फ्राइडे को सोल्ड हुए। तो ऐसे ही हमको ये जो पिक्टोग्राफ है इस पे देखकर हमें ये क्वेश्चन के आंसर सॉल्व करने हैं। नाउ सी पेज नंबर 149, exercise 12b. So this a question is the pictograph given in the next page shows the favorite colors of the children of a class. Now see your page number 150. You can see here a very small little doll. So that one doll represents one child. So this one doll equal to one child. Okay. So you can see here different colors. Which colors? Red, green, yellow, blue, purple and pink. So here one doll. This one doll represents one child. So depending upon this pictograph, we have to give the answer. See, observe the pictograph and answer the following questions. So now see what is the first question. How many children choose green? So green, how many children choose green color? So these colors are their favorite colors. Which color? Red, green, yellow, blue, purple, pink. So how many children choose green color? 1 2 3 4. 4. One doll equal to one child. So what is our answer? 4. So you write down answer here. See, so much space is given. So you write down here answer 4. Okay. Now see second question. Which color did 5 children choose? Now we have to see which color 5 children choose. 1 2 3 4 5. So again any one color. 1 2 3 4 5 6. No, 5 only 5 children choose this color. Which color is this? Purple. So we have to write here answer purple. So here once again you write down this answer purple. Now see third question. Which color was chosen by most children? So सबसे ज़्यादा, most means सबसे ज़्यादा चिल्ड्रन ने कौन से कलर को लाइक किया, क्यों, या फिर उनका सबसे फेवरेट कलर कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा नंबर तो हमको यहाँ पर दिख रहा है, हम लोग काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सबसे ज़्यादा फेवरेट कलर 10 यहाँ पर दिखाई दिया है। तो बच्चों का मोस्ट फेवरेट कलर कौन सा है यहाँ पर? रेड। सो हमारा आंसर क्या आएगा? यहाँ पर हमें क्या लिखना पड़ेगा? रेड। सो यू राइट डाउन हियर आंसर रेड। सी हियर स्पेस इज गिवन, यू कैन राइट डाउन हियर आंसर। ओके, नाउ सी फोर्थ क्वेश्चन। व्हाट इज द फोर्थ क्वेश्चन? विच कलर डिड द लीस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन चूज? लिस्ट मतलब सबसे कम। ये जो वर्ड है लिस्ट, इसका मीनिंग हमेशा याद रखने का है। लिस्ट मतलब सबसे कम नंबर, कितने चिल्ड्रन ने चूज किया है। ओके, सो सबसे कम तो यहाँ पे हमें दिख रहा है 1 2 3, और ग्रीन तो 1 2 3 4 है। सबसे कम यहाँ पे हमें दिख रहा है 1 2 3 पिंक कलर, मतलब सिर्फ 3 बच्चों का फेवरेट कलर है पिंक। तो यहाँ पे हमें आंसर लिखना पड़ेगा पिंक। सो यू राइट डाउन दिस आंसर हियर। सो ऑल दिस 4 answers you have to write down here. You can draw a single line with your scale and you write down this answer. So complete these answers on your page number 149. Now see B question. Children of class 3 were asked what pets they had. क्लास 3 के बच्चों को क्वेश्चन पूछा कि तुम्हारे घर में कौन सा पेट एनिमल है। द पिक्टोग्राफ बिलो रिप्रेजेंट्स द इंफॉर्मेशन। अभी सबके बच्चों को, अलग अलग बच्चों के घर में अलग अलग पेट एनिमल्स रहते हैं। यहाँ पर वो उनकी यहाँ पर लिस्ट दी हुई है।
डॉग है, कैट है, फिश है, हैमस्टर। हैमस्टर का मीनिंग है एक बड़ा चूहा, एक बड़ा माउस जैसा दिखने वाला एनिमल। ओके, और रैबिट, रैबिट तो सबको पता है। ओके, तो ये 1 2 3 4 5 एनिमल्स उनके पूछे गए थे, तुम्हारे घर में कौन से पेट है जिनको तुम हमारे घर में पालते हो। और यहाँ पे दिया है 1 पेट रिप्रेजेंट्स 2 चिल्ड्रन। देखो 1 पेट रिप्रेजेंट्स 2 चिल्ड्रन। अभी इस पिक्टोग्राफ के ऊपर से हमें यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे, उसके हमें आंसर्स यहाँ पे लिखने। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच पेट डिड द मोस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैव। मोस्ट मीन्स सबसे ज्यादा। अभी इसके पहले भी हमने क्वेश्चन में देखा मोस्ट का मीनिंग होता है सबसे ज्यादा किसके पास है। तो यहाँ पे हमें क्या क्वेश्चन मिला है, विच पेट डिड द मोस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैव। तो यहाँ पे देखो डॉग, डॉग का हमें सबसे ज़्यादा दिख रहा है नंबर, हम लोग काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और एक पेट रिप्रेजेंट्स 2 चिल्ड्रन, 1 पेट रिप्रेजेंट्स 2 चिल्ड्रन। तो यहाँ पे कितने हमको 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 2 जा 18। तो हमारा आंसर यहाँ पे 18, यहाँ पे पेट उनका ये बच्चों ने आंसर दिया है। तो सबसे ज़्यादा किसके पास है, डॉग। कौन सा एनिमल है, विच पेट है, डॉग। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए, डॉग। यू राइट डाउन हियर फर्स्ट आंसर डॉग। यू आर हैविंग सो मच स्पेस हियर, you can draw a simple line here with your scale and write down the answer. Now see second question. Which pet did the least number of children have? I told you just right now what is the meaning of least. Least मतलब सबसे कम। तो यहाँ पे हमको क्लियर कट दिख रहा है सबसे कम नंबर किसका है, रैबिट का, ओनली 1। 1 पेट रिप्रेजेंट्स 2। How many children? Only 2 children. So what is our answer? Rabbit. So you write down here answer rabbit. Okay. Now see third question. How many children had fish? So count this fish. How many children? 1 2 3 4 5 6. 1 pet represent 2 children. 6 2 are 12. तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, How many children had fish? तो 6 2 जा 12, तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पे 12। सो यू राइट डाउन आंसर हियर 12। ओके, नाउ सी फोर्थ एग्जांपल। हाउ मेनी चिल्ड्रन हैड कैट। अभी कैट कहाँ पर है, ये देखो कैट यहाँ पर है। सो हाउ मेनी चिल्ड्रन, वी विल काउंट नाउ 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 pet represents 2 children। 8 2 जा 16। हमारा क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी चिल्ड्रन हैड कैट। तो 8 2 जा 16। सो यू राइट डाउन हियर आंसर 16। सो ऑल दिस 4 आंसर यू हैव टू कंप्लीट ऑन दिस पेज नंबर 150। नाउ सी क्वेश्चन। The following pictograph shows the time taken by some children to finish homework. So यहाँ पे एक पिक्टोग्राफ दिया हुआ है जिसमें यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 स्टूडेंट्स के नेम दिए हुए और आगे दिया हुआ है एक क्लॉक, एक वॉच दी हुई है। तो 1 वॉच रिप्रेजेंट्स 5 मिनट्स। ओके, तो हमें इसके ऊपर से यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिए हुए उनके आंसर फाइंड आउट करने हैं। ओके, सो महिमा, राखी, योगेश, सलमान, अखिल एंड सीमा। अभी देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है। देखो, हु टुक मैक्सिमम टाइम। मैक्सिमम मतलब बहुत ज़्यादा टाइम किसने लिया होमवर्क कंप्लीट करने के लिए। अभी यहाँ पे देखो सबसे ज़्यादा नंबर यहाँ पे वॉचेस किसके दिख रहे हैं, योगेश के। क्लॉक किसका दिख रहा है, योगेश का। सो हमको काउंट करना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6 7 एंड 1 क्लॉक रिप्रेजेंट 5 मिनट। तो हमें ये 7 को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 7 5 जा 35। सो सबसे ज़्यादा टाइम किसे लगा है, योगेश को। तो योगेश का नाम हमें यहाँ पर लिखना है। सो यू राइट डाउन हियर नेम ऑफ योगेश। ओके, क्वेश्चन में क्या दिया है, हु टुक मैक्सिमम टाइम।
तो योगेश ने सबसे ज़्यादा टाइम लिया है। ओके, उसके आगे हमको अगर लिखना है 35 मिनट्स, तो हम यहाँ पर ब्रैकेट में लिख सकते हैं कितना टाइम लगा, 35 मिनट्स होमवर्क कंप्लीट करने को। नाउ सी सेकंड क्वेश्चन, हु टुक मिनिमम टाइम, कम से कम टाइम किसे लगा, देखो तो हु टुक मिनिमम टाइम, सबसे कम टाइमिंग किसको लगा है यहाँ पर, देखो ओनली 3 क्लॉक्स आर देयर। अखिल को देखो 1 2 3 एंड 1 क्लॉक रिप्रेजेंट 5 मिनट्स, सो 3 5 15 मिनट्स लगे उसको अपना होमवर्क कंप्लीट करने के लिए। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, हु टुक मिनिमम टाइम, तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा अखिल। ओके, सो नाउ थर्ड क्वेश्चन इज विच 2 चिल्ड्रन टेक इक्वल टाइम, ऐसे कौन से 2 चिल्ड्रन है जिन्होंने होमवर्क कंप्लीट करने के लिए इक्वल टाइम लिया है, तो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 और 4 कहीं दिख रहा है क्या, हाँ यस 1 2 3 4, और कहीं दिख रहा है नो, तो 1 2 3 4 4 5 20, तो यहाँ पर भी 4 क्लॉक्स है और यहाँ पर भी 4 क्लॉक्स है, तो उनके नाम क्या है फिर, राखी एंड सीमा। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, विच 2 चिल्ड्रन टेक इक्वल टाइम, दोनों ने सेम टाइमिंग लिया है, तो उनका टाइम नाम क्या है, राखी एंड सीमा। सो यू राइट डाउन योर आंसर, राखी एंड सीमा। So you write down this answer there. You can draw one small line with the help of your scale and write down the answer. Now see fourth question. What is the fourth question? Who do you think is the cleverest child? आपको कौन सा चाइल्ड सबसे ज़्यादा होशियार लगा इन पाँचों, ये इन 6 में से, ये 6 स्टूडेंट्स में से सबसे ज़्यादा होशियार जिसको होमवर्क करने के लिए, अपना होमवर्क कंप्लीट करने के लिए कम से कम टाइम लगा, तो वो है अखिल। उसे सिर्फ 1 2 3 3 5 15 मिनट्स लगे अपना होमवर्क कंप्लीट करने के लिए। सो यू राइट डाउन योर आंसर अखिल। ओके, सो यू राइट डाउन ऑल द 4 आंसर्स हियर in your textbook. Now see D question. In a class of 27 students, absentees in a particular week were shown in the following table. एक क्लास है जिसमें सिर्फ 27 स्टूडेंट्स हैं और यहाँ पे मंडे से लेकर सैटरडे तक कितने स्टूडेंट्स absent थे उनकी यहाँ पर लिस्ट दिखाई दी। अभी इस लिस्ट के ऊपर हमें ये क्वेश्चन के आंसर देने हैं। Now see, using the pictograph, answer the following questions. The first question is, on which day maximum number of students were absent? So, Monday absent student की यहाँ पर list दी हुई है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, on which day maximum number of students were absent. तो फ्राइडे को देखो यहाँ पे only 1 student यहाँ पे absent दिख रहा है, तो यहाँ पे 27 माइनस 1 हमें करना पड़ेगा, तो क्या आएगा आंसर 26। लेकिन यहाँ पर देखो दूसरी जगह पर वेनसडे को 8 स्टूडेंट्स absent थे और टोटल स्ट्रेंथ कितनी है क्लास की 27। सो 27 माइनस 8 कितने हुए, देखो 27 माइनस 8, 7 minus 8 not possible, so 17 minus 8 9, 2 minus 1 1, write down 1. So how many students are absent here, see total 19 students are absent. So the question is, on which day maximum number of students are absent? So what is our answer, Wednesday. So you write down your answer Wednesday. Okay, now see second question, on which day maximum number of students were present? किस दिन सबसे ज़्यादा बच्चे प्रेजेंट थे?
तो यहाँ पर देखो फ्राइडे दिया, फ्राइडे को सिर्फ एक स्टूडेंट एब्सेंट था। 27 माइनस 1 हाउ मच, 26। तो यहाँ पे मतलब फ्राइडे को 26 बच्चे प्रेजेंट थे, तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा फ्राइडे। सो यू राइट डाउन योर आंसर फ्राइडे। ओके, नाउ सी थर्ड क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टूडेंट्स वेयर प्रेजेंट ऑन मंडे। अभी मंडे को देखना है हमको। मंडे को थे 5 स्टूडेंट्स एब्सेंट और 27 माइनस 5 हाउ मच, 22। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स वेयर प्रेजेंट ऑन मंडे। तो 27 में से 5 स्टूडेंट एब्सेंट थे, सो 27 माइनस 5, टोटल प्रेजेंट कितने हुए, 22। ओके, सो हियर you write down your all these 3 answers.